So hello my dear students, and today I am going to explain you part 2 of class 9 science, that is chemistry part, atoms and molecules. In my previous class I have explained you the basic introduction of the chapter, what are atoms and what are molecules. Now we will see Dalton's atomic theory. What is Dalton's atomic theory? Actually he is John Dalton. He is a French mathematician. He has done many discoveries, many inventions in mathematics, in physics, in chemistry also. Here in chemistry, he is the first person who thought of any matter. What are matter? Anything which can occupy space and have mass is called matter. So matter is composed of solid, liquid, gas, whatever matter, whether it is solid, liquid and gas, he has given 6 postulates. Means everything is made up of a small particles called atom. So that atom has some basic properties, basic theory. What are those basic theory? John Dalton has given us in 6 points. That is called Dalton's atomic theory. Now, what is the first point of Dalton's atomic theory? See, this is the first point. Now, what he has said in his first postulate, all matters is made up of very tiny particles called atoms. So basically in the first video I have explained you, whether you take iron or sodium, whatever element, whatever matter, solid, it is made up of small particles. These particles are called atoms. So atoms are the tiniest particle of any matter. Okay. Now second part. Atoms are indivisible particles. Here up to this period, you just think that atoms are indivisible particles, but later it was proved wrong. But when we will go the further chapter number 4, there we will see it is wrongly prescribed by the Dalton that atoms are not indivisible particles. But here in the postulates, what he has written, that we have to learn. Atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. So atoms are indivisible particle, okay, but it cannot be created nor it can be destroyed in any chemical properties. In any chemical reaction, ना इस एटम को तोड़ा जा सकता है, देखिए हमने तोड़ के देखा, नहीं टूटा, ना इसको कोई क्रिएट किया जा सकता है. ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो डाल्टन ने प्रेडिक्ट किया था. थर्ड, atoms of given elements are identical in mass and chemical properties. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आयरन का एटम्स देखते हैं, ठीक है. आयरन के एटम्स छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत छोटे एटम्स होते हैं. जो हमारा फर्स्ट पार्ट postulate तो यही बता रहा है कि एनी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एटम. इसी एक को इसमें से एक देखते हैं. ये एक आयरन का एटम है, ये भी एक आयरन का एटम है. जितने भी आयरन के एटम है सब आइडेंटिकल है, यानी सब सेम है, और सबका मास जो है इक्वल है, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. किसकी बात कर रहे हैं? आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं सोडियम की बात कर लेते हैं. सोडियम में भी आपके कई सारे एटम्स होंगे.
ये जो सोडियम का एटम है और ये जो सोडियम का एटम है, दोनों सेम रहेंगे, दोनों का मास इक्वल रहेगा और दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज भी इक्वल रहेंगे। यही डाल्टन का थर्ड पोस्टुलेट बताता है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, चाहे वो इसका कोई भी एलिमेंट का जो एटम्स है, और आइडेंटिकल, सेम है, किसमें? मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट तो था आयरन के सभी एटम सेम होंगे, इसके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, सोडियम के सभी होंगे, ऑक्सीजन के सभी होंगे, बट अभी बता रहा डिफरेंट डिफरेंट। एक हम आयरन का एक आयरन का हम ले लेते हैं और एक सोडियम का ले लेते हैं, ये दोनों के मास अलग रहेंगे, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग है। ये आपके आयरन का एक एटम था और ये आपका सोडियम का एक एटम था, यानी अलग अलग एलिमेंट के मासेस अलग अलग रहेंगे, प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगे। वही बता रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि इस फिफ्थ पोस्टुलेट में कंपाउंड का जिक्र हुआ, तो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स हुआ, है ना, एटम नहीं होगा। एटम होता है एलिमेंट का, कंपाउंड का होता है, ये फिक्स है। वाटर का देखते हैं, तो वाटर में क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, मतलब O, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, तो इसके जो नंबर्स हैं, दो और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यही होगा। मीथेन गैस देखते हैं, मीथेन। मीथेन में क्या होता है? एक C और 4 तो H होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, फिक्स है, एक CH4। अब वाटर में अगर हम H को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं, तो वाटर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। यही हमको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। एक होल नंबर में रहते हैं। सिक्स्थ क्या बताता है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। फिर ये कंपाउंड की बात हुई, वाटर का ही देख लेते हैं। वाटर में क्या है? उसका जो रेशियो जो है एकदम फिक्स है। जैसे वाटर का तो H2O है, तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है आपका, हर एक ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन होने जरूरी है। मीथेन, हर एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इसकी जो रेशियोज है फिक्स है। अगर हम 3 हो जाता तो वाटर कंपाउंड नहीं, कुछ और हो जाएगा, इज़न्ट इट? अगर हम इसको 2 रख के इसको 2 कर देते हैं, O2 H2O2, ये वाटर नहीं हुआ। तो इनके जो रेशियोज जो है ये फिक्स है। ये भी हमको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की 6 पोस्टुलेट्स बता रही है। तो यही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की 6 पोस्टुलेट्स है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कि ऑल मैटर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ ए टाइनीस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। सेकंड बताता है कि एटम न टूटता है न बनता है, नॉर इट क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये इनडिविजिबल है, ये डिवाइड होता ही नहीं है फर्दर। ये इनडिविजिबल है बोल करके बाद में ये प्रूव रॉन्ग हुआ, विल डिस्कस इन द लेटर। थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स के एक ही एलिमेंट के जो सारे मास होते हैं उसके एटम्स के इक्वल होते हैं। आयरन के जितने भी एटम्स है सबके वजन एक ही जैसे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबका एक ही होगा। कार्बन के जितने एटम्स है सब एटम्स इक्वल होंगे। ये आपका थर्ड। फोर्थ क्या बताता है
कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अगर दो अलग अलग, एक कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का एटम ऑक्सीजन का एटम, दोनों का मास इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज पोस्टुलेट नंबर 4। 5, इनके फिक्स होल नंबर H2O में रहते हैं। और 6, जितने भी कंपाउंड्स है इनके रेशियो भी फिक्स है, इतनी रेशियो में बढ़ता है। वाटर में 1 गुना अगर आपका ऑक्सीजन है तो 2 गुना आपका ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 गुना C है तो 2 गुना ऑक्सीजन है, 2:1 हमारा वहाँ पर भी रेशियो आता है। सो दिस इज़ व्हाट हमारे डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स बताया है। इसको अच्छे से पढ़िए, आपके बुक में है पेज नंबर 32 में 6 पोस्टुलेट्स दिया गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन सबको एक बार अच्छे से पढ़िए। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर देखिए, अच्छे तरह से समझिए, क्योंकि सब्जेक्ट समझने वाली है। जितना समझोगे उतना ही आप आगे के लिए समझने लायक अपने आप को बनाओगे। ओके, सो वेट फॉर द अनदर वीडियो। टिल देन, बाय।